Yes, welcome back, dear students. Yesterday we discussed power sharing, and there are two main reasons behind power sharing. One is prudential reason, and another is moral reason. کہ ایک ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں کہ یہ ملک سالم رہے، ملک کے لوگوں میں سے ہر ایک گروپ کا بقا جو ہے اس کا تحفظ کیا جائے. اور مورلی اس کا یہ ریزن ہے کہ ہم جن لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں ان کے جذبات، احساسات، ان کے مذہب، ان کے کلچر، ان کے دوسری حقوق کا تحفظ کیا جائے. تو اب یہ پاور شیئرنگ آج سیکنڈ لیسن ہے اور یہ فائنل لیسن ہی ہے، اس میں آج کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے پاور شیئرنگ کہاں کہاں پر ہم کرتے ہیں، تو آج کا لیسن اسی سے متعلق ہے. دیز آر فارمز آف پاور شیئرنگ. پاور شیئرنگ کے مینلی 4 جگہ پر اس کی شیئرنگ ہوتی ہے، یعنی اقتدار کو، حکومت کے قانون وغیرہ کو، ان کو شیئر کیا جاتا ہے 4 جگہوں پر. First of all, that is, power is shared among different organs of the government. You already know what are the organs of government. Government کے organs, basic organs یہ 3 ہیں: legislative or legislature, executive and judiciary. ان تینوں کا اس کو یہ دوسرے الفاظ میں اس کو ہاریزنٹل جو ہے ہاریزنٹل پاور شیئرنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں تینوں کام کرتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن میں پروویژن یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیچر کا رائٹ کیا ہے، فارمیشن آف لاز لیجسلیچر میں ہوتی ہے، اور ایگزیکیوٹیو باڈی جو ہے گورنمنٹ کی ایگزیکیوٹیو باڈی اس کو انفورس کرتی ہے. جوڈیشری یہ دیکھتی ہے کہ کہیں اس قانون کو ٹھیک طریقے سے چلایا جاتا ہے. حالانکہ یہی جوڈیشری، یہی جج جس کو اگر لیجسلیچر اس کو اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن وہ بعد میں یہ دیکھتا ہے کہ ان کے ذریعے سے کام ٹھیک ہو رہا ہے کیا نہیں، انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی ہے. گویا ان 3 جو پاور جو ہے، یا ہم ادروائز کہیں گے جو قانون جو ہے، رائٹس جو ہے رائٹ، تو ان کو ان 3 چیزوں میں یہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یہ شیئر کرتے ہیں. کچھ پاور جو ہے وہ صرف لیجسلیٹو کے پاس ہے، کچھ پاور جو ہے وہ صرف ایگزیکیوٹیو کے پاس ہے. اگر کوئی کیبنٹ یا کوئی منسٹر جس نے کوئی بل پاس کیا ہو وہ بھی پھر اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایگزیکیوٹیو کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی قانون کے مطابق عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کرے. پھر اس کو سزا دینا، اس میں دیکھنا کیا غلطی ہوئی ہے، وہ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے. گویا یہ ہاریزنٹل اس کی ہاریزنٹل پاور شیئرنگ ہے. ایک ہی وقت میں اس قانون کو 2-3 جگہ سے مانیٹر کیا جاتا ہے، اپنے اپنے حد کے مطابق ہر ایک کے پاس یہ رائٹس ہے کہ کون کیا. گویا یہ ایک ہی جگہ کوئی سینٹر اس کا اگرچہ پارلیمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ خود کچھ نہیں کر سکتی ہے. پھر ایگزیکیوٹیو باڈی کے پاس وہ رائٹس ہیں کہ وہ اس کو انفورس کرے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کے مطابق لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے. اور پھر جوڈیشری کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو قانون جو بنایا گیا ہے لیجسلیچر میں یا پارلیمنٹ میں جو قانون بنایا گیا ہے، یا سینٹ میں جو قانون بنایا گیا ہے، اس کے مطابق گورن کیا جاتا ہے گورنمنٹ، یا اس کے اگینسٹ کیا ہوتی ہے. First of all, power is shared among different organs of government, that is legislature, executive and judiciary. First and second power sharing takes place. Power is shared among governments at different levels. گورنمنٹ ایک ملک جو بڑا ملک ہوتا ہے، لارج کنٹری، وہاں پہ 2 طرح کی گورنمنٹس ہوتی ہے. ایک ہے سینٹرل گورنمنٹ، کسی جگہ اس کو سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں، کسی جگہ یونین گورنمنٹ کہتے ہیں، کسی جگہ فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں. لیکن ان سارے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو سب آرڈینیٹ اسٹیٹس ہیں ان اسٹیٹس کو بھی ایک گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، جس کو سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں، یا اسٹیٹ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں، یونین گورنمنٹ کہتے ہیں. ان تینوں کا مقصد ایک ہی ہے، جو پورے ملک وہ جو اس کے پروونسز ہیں یا ڈویژنز ہیں یا جو اس کے پارٹس ہیں، ان سب پارٹس کو جو کنٹرول کرتی ہے، کوآرڈینیٹ کرتی ہے،
उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो इस फेडरल गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का। तो पावर शेयरिंग में कुछ पावर या इक़्तिदार या कुछ कानून, कुछ चीज़ें सिर्फ इनके पास होती है, यूनियन, सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो कुछ स्टेट का अपना मामला होता है, स्टेट किस तरह से चलाए, यहाँ पे इनकी मुदाखलत नहीं होती है। पर्टिकुलरली इसमें जो है मसलन डिफेंस होता है, फॉरेन पॉलिसी होती है और ये करेंसी होती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है एक मुल्क में। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी तरह स्टेट के बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंस में एक अगर उसके बहुत सारी प्रोविंस होते हैं, उस प्रोविंस में क्या काम होता है, किस प्रोविंस का क्या काम है, कहाँ तक जा सकती है कोई प्रोविंस, खुद से वो क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट के पूछने के बगैर। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछने अप्रूवल के बगैर कहाँ तक कोई काम कर सकती है। इस तरह फिर डाउन लेवल तक, ये तो अब तो सो फार एज इंडिया इज कंसर्न यहाँ पर पंचायत लेवल तक होता है ये, कि ये जो पंचायत का जो सरपंच होता है उसके पास भी कुछ पावर्स हैं, वो खुद किसी से पूछे बगैर, जो उसको लिमिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको मतलब राइट्स हैं, वो खुद से क्या क्या काम कर सकता है, किस काम की देखभाल कर सकता है, कौन कौन से काम वो खुद कर सकता है। तो ये है एक किस्म की पावर शेयरिंग, यानी कुछ पावर शेयर करना गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। ये तो पहले होता है यूनियन, सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट, ये शेयर करता है ये पावर स्टेट या प्रोविंशियल के साथ, फिर स्टेट प्रोविंस के साथ, प्रोविंस फिर सब जब डिस्ट्रिक्ट्स के साथ या पार्ट्स के साथ, वो नीचे डाउन लेवल तक इसकी जो सिस्टम जो एक है उसमें पावर शेयरिंग होती है। तो ये गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल्स है। तो अगर ऐसा नहीं करें तो एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको श्रीलंका की मिसाल दी, श्रीलंका में जो हुआ वहाँ पर उन्होंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, सब अपने हाथ में ले लिया और सिन्हाला पॉपुलेशन ने, तो विद द रिजल्ट देयर बिगेन ए सिविल वॉर। नंबर थर्ड, दैट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुल्क में एक ही किस्म की आबादी न हो, एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग न हों, एक ही ज़बान बोलने वाले लोग न हों। तो सो फार इंडिया इज कंसर्न, इसमें बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे इतने ग्रुप्स हैं। तो इन सब को ये सेटिस्फाई करने के लिए और इनके जो राइट्स हैं उनको जिंदा रखने के लिए, इनका जो कल्चर है, इनकी जो लैंग्वेज है, उसको कायम रखने के लिए। सो आप देख रहे हैं कि आपकी जो हमारी जो करेंसी जो है, करेंसी पे बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, 16-17 लैंग्वेजेस जो है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिखा गया है, वरना एक ही लैंग्वेज भी लिख सकते थे, ताकि उनको इनके साथ मान लो एक किस्म का पावर शेयर किया गया है कि नहीं जी, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लेंगे और इसको करेंसी पे हम ऐड कर लेंगे, ताकि वो ये देख लें कि हम इस मुल्क में रहते हैं और हमारी ज़ुबान को भी इसके साथ ऐड किया गया है। हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, जो संस्कृत है, जो अंग्रेज़ी भी है, तो बहुत सारी जो ज़बानें हैं वो आप करेंसी में आप देख सकते हैं। ये पावर शेयरिंग का ही एक कंसेप्ट है कि नहीं जी, उनको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तो थोड़े से सेटिस्फैक्शन होते हैं। एक तो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, हर एक मजहब, मतलब यहाँ पे इंडिया में जो था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का कंसेप्ट ये है कि नहीं, इनके लिए अपना जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के जो बुनियादी कुछ मामलात हैं तो उनको हल किया जाए। हालांकि इसमें अब थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है तलाक के बारे में, तो जो नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह से एक कन्फ्लिक्ट एक चल रहा है जो पैदा हुआ है। तो रिलीजियस ग्रुप उसको अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है। इसी तरह लिंग्विस्टिक, ये जो ज़ुबानें हैं, बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, तो उनको अपनी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ किया जाता है। इस तरह कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो बहुत सारे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लेकिन एक ट्राइब एक के तौर पर होते हैं। इसी तरह ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही अलग है, वो इन्हीं की देखभाल करती है। भैया इन ट्राइब्स के साथ पावर को शेयर किया जाता है। और लास्ट जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स एटसेट्रा।
अब देखते हैं कि एक मुल्क में जब बहुत सारी when there is a multi party system particularly या बाई पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो, इंडिया में चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें पार्टीज एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है. अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है. कोएलिशन गवर्नमेंट मीन्स कि एक मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलकर अपने एमएलएज या एमपीज मिलाकर एक गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन वो फिर पावर को शेयर करते हैं कि इतने मिनिस्टर्स इस पार्टी से होंगे, इतने मिनिस्टर्स इस पार्टी के होंगे, ये पोर्टफोलियो ये मिनिस्ट्री इस पार्टी को दी जाएगी. तो एक किस्म की पावर शेयरिंग है. एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है. तो ये इस वजह से जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसका असर डायरेक्टली ये होगा कि वहां पे हुकूमत तो फॉर्म ए गवर्नमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. वहां पे हुकूमत बनेगी नहीं, क्योंकि जब मेजॉरिटी एक पार्टी के पास ना हो तो जब तक उस सिलसिले में बहुत सारी पार्टियों को मिलकर एक गवर्नमेंट बनानी है, तो उसमें वो फिर पावर को शेयर करते हैं. हुकूमत चलानी है, हुकूमत चलाने में हर एक का रोल फिर बनता है कि इस पार्टी के पास कितने मतलब रेशियो प्रोपोर्शनली मिनिस्टर कितने आएंगे, कौन सी मिनिस्ट्री इसको दी जाएगी, फिर वो क्या करेंगे. तो इसी तरह कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो अगर छोटे होते हैं लेकिन हुकूमत के ऊपर इनका जोर होता है. अगर उन प्रेशर ग्रुप्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा तो वो मुल्क का निज़ाम ख़राब कर देंगे. इसी तरह कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उनको फिर ख्याल रखा जाता है कि नहीं, इनको थोड़ा इक़्तिदार के अंदर लाएं, इनके साथ बात करें, इनको थोड़ा सा पावर में कुछ दे दें, कुछ इनकी बात माने, कुछ इनको बात माननी है. तो एक किस्म की शेयरिंग है. शेयरिंग के मानिए कि हम तकसीम करते हैं. फिर जो पावर, जो इक़्तिदार एक पार्टी के पास होता है, उसको फिर सोशल इंटरेस्ट में बहुत सारी पार्टियों के अंदर ये जो है डिवाइड करना पड़ता है, बहुत सारी पार्टियों को देना पड़ता है. इससे मुल्क की सालमियत बहाल रहती है, इसमें मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं होती है. तो इस तरीके से ये बस इसमें दो ही चीज़ें थी. एक है रीजनस फॉर पावर शेयरिंग क्या है, दूसरी ये है कि पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल. ये इतना काफ़ी है. इस तरीके से फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ. अब सेकंड लेसन इंशाल्लाह इसके बाद होगा. सेकंड लेसन को आप खुद भी पढ़ सकते हैं. सेकंड लेसन जो है आपका वो है फेडरलिज्म को भी हम इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट कर लेंगे. लेकिन ध्यान से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो डेली आपका एक लेसन इस सिलसिले में होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें. और LMS पर ये वीडियो जो है वो अपलोड होते रहते हैं, यूट्यूब पर भी अपलोड होते रहते हैं. अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी कहीं नोटिफिकेशन निकलेगी तो इसको पूरा कीजिएगा. शुक्रिया.